فواد کو چائے کمرے میں دے آؤ اور محمل تم ٹرالی لان میں لے آؤ۔ تائی مہتاب اپنی اضلاع بے نیازی سے کہہ کر پلٹ گئی تھی تو ٹرالی سیٹ کرتے محمل کسی خیال سے چونکی۔ فواد کی ٹرے الگ سیٹ کر دو، محمل میں دے آؤں گی، تم ٹرالی باہر دے آؤ۔ میں نہیں دیکھ کر آ رہی ٹرالی، تنگ آ گئی ہوں میں ان ذلیل لوگوں کے سامنے۔ اچھا چپ کرو، مسرت بوکھلا کر آگے بڑھی اور ٹرالی کا کنارہ تھام لیا۔ میں لے جاتی ہوں، تم فواد کو چائے دے آؤ۔ اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ سو شانے اچکا کر لاپرواہی سے ٹرے سیٹ کی اور پھر اسے اٹھا کر تھپ تھپ سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فواد بھائی، اس نے دروازے پر ہلکا سا نوک کیا۔ آ جاؤ۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ فواد آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر نیم وا پڑا تھا۔ فواد بھائی آپ کی چائے؟ ہاں رکھ دو۔ وہ کسل مندی سے اٹھا، انداز سے تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے فواد بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور کپ اٹھا کر اس کے پاس آئی۔ ہاں کچھ نہیں، آفس کا مسئلہ ہے۔ اس نے چائے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو چائے پکڑاتی محمل کی انگلیاں ذرا سی مس ہو گئیں۔ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا، پھر چائے کا گھونٹ پڑا۔ چائے تو اچھی بنا لیتی ہو، اماں نے بنائی ہے۔ وہ جذبت سے اس کے سامنے کھڑی تھی، اونچی پھوری پونی ٹیل والی دراز قد محمل۔ لائی تو تم ہو، ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں۔ اچھا، وہ مسکرا دی۔ اور یہ انگلینڈ جانے کا کیا سین ہے؟ وہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ سر چکائے کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مگر تم جاب کرنے کا کہہ رہی تھی، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ چائے کا کپ ایک سائڈ پر رکھے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف اپنے خرچوں کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اتنی بڑی بزنس امپائر یہ کون سنبھالے گا؟ محمل نے جھٹکے سے گردن اٹھائی، اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ بزنس امپائر؟ ہاں، تم اس کے آنرز میں سے ہو۔ کیا تمہارا فرض نہیں ہے تم اپنے ابا کے بزنس پر بھی دھیان دو؟ آخر کبھی نہ کبھی تمہیں یہ سب سنبھالنا ہے۔ جی؟ وہ بے یقینی سے ادھر دیکھ رہی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو محمل؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل نے دیکھا وہ اس سے خاصا لمبا تھا۔ میں پتہ نہیں، کیا تم یہ سب نہیں سنبھالنا چاہتی؟ میں سنبھالنا چاہتی ہوں، مگر کیسے؟ تم واقعی سنبھالنا چاہتی ہو؟ فواد کے چہرے پر خوشگوار حیرت اتری۔ یعنی اگر میں تمہیں اپنے ساتھ آفس میں لگانا چاہوں تو تم کام کرو گی میرے ساتھ؟ جی بالکل۔ اس کا دل ایک دم کسی اور لیب پر دھڑکنے لگا تھا، ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں شام میں آقا جان سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ اجازت دے دیں گے؟ اس کے اندر وسوسوں نے سر اٹھایا۔ شور، کیوں نہیں دیں گے؟ وہ مسکرا کر اسے تسلی دے رہا تھا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ ایک دم ہی اسے سب اپنی مٹھی میں اترتا دکھائی دینے لگا تھا۔ دولت نچھاور محبوب قدموں میں اب اسے اس سیاہ فام لڑکی کی کتاب کی ہر کی ضرورت نہ تھی۔ وہ ہواؤں میں اڑتی واپس اپنے کمرے میں آئی تھی، اور پھر رات میں جب فواد نے آقا جان کے سامنے اسے اپنے ساتھ کام پر لگانے کی تجویز پیش کی تھی تو سب سے پہلے حسن نے پہلو بدلا تھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے فواد؟ محمل کو ابھی اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے، وہ ناگواری سے بولا تو محمل کو واضح برا لگا تھا۔ شکر تھا خاندان کی عورتیں وہاں نہ تھیں، نہیں تو طوفان ہی آ جاتا۔ تم بیچ میں مت بولو حسن، میں آقا جان سے بات کر رہا ہوں اور میں تمہاری باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ حسن نے ایک کٹیلی نگاہ محمل پر ڈالی۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے یہاں کیا چکر چل رہا ہے۔ شٹ اپ! فواد بھڑک اٹھا تو آقا جان نے دونوں کو ہی جھڑک دیا۔ شٹ اپ یو بوتھ! حسن تم جاؤ اپنے کمرے میں، اور وہ فوراً تیز چلتا وہاں سے نکل گیا۔ اور فادی، حسن ٹھیک کہہ رہا ہے، محمل کا آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ کبھی آفس جائے گی۔ مگر آقا جان، آقا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، محمل کا آفس میں کیا کام؟ بالکل، لڑکیوں کو ادھر دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غفران چچا اور اسد چچا نے بھی فوراً آقا جان کی تائید کر دی تو محمل نے بے بسی سے مدد طلب نظروں سے فواد کو دیکھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ شانے اچکا کر اب جھک کر اپنے بوٹ کے دسمے بند کر رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا اور وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور سنک پر چھپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں کے ساتھ سارے خواب گرتے بہتے چلے گئے۔ وہ اتنا روئی کہ ہچکی بند گئی تو بالآخر نل کھول کر منہ پر پانی ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ آخری بار رو رہی ہے، وہ آج کے بعد ہرگز نہیں روئے گی۔ اس نے تو سیدھے طریقے سے سب حاصل کرنے کا سوچا تھا، لیکن ان لوگوں کو سیدھا طریقہ راست نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اب ان سے انتقام لینے کے لیے اسے جادو یا سفلی علم کا سہارا بھی لینا پڑے تو وہ لے گی۔ اسے اب صبح کا انتظار تھا۔ صبح اسے بس اسٹاپ پر جا کر اس سیاہ فام لڑکی سے وہ کتاب لینی تھی، ویسے نہیں تو ایسے صحیح۔ چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا تھا صبح اسے کالج نہیں جانا تھا، ایگزامز ختم ہو چکے تھے، مگر وہ پھر بھی بہانہ بنا کر مخصوص وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے بس اسٹاپ پر چلی گئی اور اب مسلسل بینچ کے آس پاس ٹہل رہی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ محمل بار بار کلائی پر بندھی کھڑی دیکھتی، پھر بے چین نگاہوں سے گردن ادھر ادھر گھماتی۔ بھوری اونچی پونی بھی ساتھ ساتھ ہی جھولتی۔ اسے شدت سے اس لڑکی کا انتظار تھا
اور آج تو لگ رہا تھا وقت بہت دیر سے گزر رہا ہے۔ بالآخر وہ بینچ پر بیٹھی اور سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ کیا میرا انتظار کر رہی تھی؟ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ وہ سیاہ فام لڑکی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی اور میں جانتی ہوں کہ کیوں۔ وہ آرام سے بینچ پر بیٹھی، بیگ کا اسٹریپ کندھے سے اتار کر ایک طرف رکھا اور کتاب احتیاط سے گود میں رکھی، پھر جیسے فارغ ہو کر محمل کا چہرہ دیکھا۔ تم تھک گئی ہو؟ ہاں میں تھک گئی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں اس دنیا میں، میرے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اوہو ایسے نہیں کہتے، ابھی تو تم نے وہ کچھ لینا ہے جس کی چمک سے تمہاری آنکھیں چکا چوندھ رہ جائیں گی۔ ابھی تو تم صحیح راستے پر آئی ہو۔ مجھے صحیح اور غلط کا نہیں پتہ اور نہ ہی میں صحیح اور غلط کی تفریق میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بے اختیار نگاہیں چرائی تھیں، اپنے دل سے، اپنے اندر بیٹھے گلٹ کے احساس سے۔ کوئی بات نہیں، شروع میں یہ کتاب مشکل لگے گی، جیسے کوئی عذاب ہو، کوئی قید ہو، مگر پھر تم عادی ہو جاؤ گی۔ وہ ویسے ہی مسکرائی تھی۔ یہ کتاب مجھ سے کیسے بات کرے گی؟ محمل سحر زدہ سے اس لڑکی کی گود میں پڑی کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ روز اس کا ایک صفحہ پڑھنا اگر مشکل لگے تو میں تمہیں کچھ ایسے لوگوں کا پتہ بتاؤں گی جو اس کتاب کا علم سکھاتے ہیں، بالکل چپ چاپ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں۔ میں تمہیں ادھر لے جاؤں گی، وہ تمہیں اس قدیم کتاب کا علم سکھائیں گے جس میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ پھر جب تم روز اس کا ایک ایک صفحہ کی روادار اور یسٹرڈے پڑھنے کے قابل ہو جاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہر صفحہ تمہارے لیے تمہیں ٹمورو کی تدابیر بتائے گی، اور اگر میں ایڈوانس میں ایک صفحہ آگے پڑھ لوں تو مجھے اپنے آنے والے کل کا علم ہو جائے گا۔ نہیں، تم ایک دن میں پوری کتاب بھی پڑھ لو تب بھی وہ تمہاری یسٹرڈے کی روادار ہی سنائے گی، لیکن اگر وہی صفحے تم اگلے دن پھر سے پڑھو تو وہ اس دن کے حساب سے تمہاری گزشتہ دنوں کی روادار بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ سی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صفحے کا ایک دن میں ہی مطلب بدل جائے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا آج تم اس کتاب کی طرف یوں کھینچے آتی؟ تمہیں شک ہے کیا؟ نہیں، مگر تم مجھے یہ کیوں دے رہی ہو؟ تمہارا اس میں کیا فائدہ؟ اپنی دانست میں محمل نے خاصا عقل مندانہ سوال کیا تھا۔ میرا ہی تو اصل فائدہ ہے۔ وہ پھر اسی پر اسرار انداز میں مسکرائی۔ جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا اس کا ایک شیئر تو مجھے ہی جائے گا۔ شیئر؟ وہ دنگ رہ گئی۔ کیا مطلب؟ اور کتنا شیئر؟ کتنے %؟ شاید آدھا، شاید اس سے کچھ کم، معلوم نہیں، مگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں، میرا حصہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یہ کتاب خود میرے پاس آ کر میرا حصہ دلوائے گی۔ اچھا، وہ متحیر سی ہو گئی۔ پھر یہ میں لے لوں؟ پہلے خوب اچھی طرح سوچ لو۔ سب سوچ لیا ہے، وہ تیزی سے بولی اور کتاب پر ہاتھ رکھ دیا۔ مبادا وہ اسے واپس نہ لے جائے۔ پھر لے جاؤ، پر یاد رکھنا یہ ایک بوجھ ہے جو میں تجھے دے رہی ہوں۔ اگر تم نے وہ جنہیں تم عملیات کہتی ہو کر لیے اور ویسے ہی کیے جیسے یہ کتاب کہتی ہے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ تم اس کتاب میں رہنے لگو گی، اس کتاب کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، دیوانی ہو جاؤ گی، مجنوں، اور پھر اگر تم نے اس کو چھوڑنا چاہا تو تباہ ہو جاؤ گی۔ جو ملا تھا وہ بھی کھو دو گی اور جو پہلے سے تھا وہ بھی عذاب بن جائے گا۔ جاؤ اسے لے جاؤ۔ اس نے سیاہ جلد والی بھاری کتاب اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی، اور جب محمل نے اسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو لرز رہے تھے۔ تھینک یو۔ کیا یہ مجھے تمہیں واپس کرنی پڑے گی؟ نہیں، اور جب میں پوری پڑھ لوں، ختم کر لوں، تب پھر سے شروع کر لینا، یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تھینک یو۔ کپ کپاتی انگلیوں سے کتاب پکڑے تیز چلتی گھر کی سمت پڑ گئی۔ کتاب کی سیاہ جلد سرد تھی، بے حد یک سرد۔ کوئی اسرار تھا اس میں، کوئی قدیم راز جسے وہ آج بے نقاب کرنے جا رہی تھی۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور دل تو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ بوجھ، بہت بھاری بوجھ تھا جو اس تھکی ہوئی لڑکی سے لیا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل ڈر رہا تھا، کہیں وہ تباہی کے کسی رستے کی طرف تو نہیں جا رہی۔ یہ سیاہ علم یا سفلی عملیات اچھے کام تو نہیں تھے؟ پھر وہ کیسے اسے اٹھا لائی تھی؟ اس نے رک کر سوچنا چاہا، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہ رہا تھا۔ دولت نچھاور، محبوب قدموں میں، دانا پہ راج، اسے بہت سی چیزیں اکٹھی کرنی تھی، اور وہ کتاب اس کے ہر مسئلے کا حل تھا۔ اسے بیگم نعمان کے ٹھکرائے ہوئے رشتے کا خیال آیا۔ اس رات فواد کی بات پر سب کے رد عمل یاد آیا۔ اسے اپنی بے پناہ دولت بھی یاد آئی تھی جس پر عیش کوئی اور کر رہا تھا۔ پھر کیسے وہ اس لڑکی کو وہ کتاب، سب خزانوں کی کنجی واپس کر آتی؟ پھر وہ نہیں رکی اور کتاب سینے سے لگائے، سر چکائے، تیز قدموں سے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی، آواز پہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے تائی مہتاب قدرے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تائی، وہ اس نے بے اختیار خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ نادیہ سے کچھ نوٹس لینے تھے، ذرا اسٹاپ تک گئی تھی، اماں کو بتا کر گئی تھی۔ ماں، تمہاری ماں تو کہیں کی لینڈ لیڈی ہے جس کی اجازت کافی تھی۔
वो ताई चचा असद को भी बताया था। पहली दफ़ा वो ताई के सामने यूँ हकला रही थी। अच्छा जाओ, सर ना खाओ। ताई बेजारी से हाथ चलाकर आगे बढ़ गई। वो कमरे की तरफ लपकी और जल्दी से अलमारी खोलकर एक खाने में सब कपड़ों के नीचे वो दबीज़ किताब छुपा दी। फिर अलमारी एहतियात से बंद की। इधर उधर देखा, सच शुक्र कि किसी ने भी नहीं देखा था। महमल, बाहर अम्मा ने पुकारा तो वो जल्दी से मुंह से पसीना पोंछते हुए बाहर आई। जी। मुसरत जो किचन में सारे घराने का नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी, पैन में अंडा पलटते हुए मुड़कर इसे देखा। तुम तो कॉलेज गई थी, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? जी बस खैरियत। ओहो, आज सबको मेरी इतनी फ़िक्र क्यों लग गई? नादिया से नोट्स लेने थे, मिल गई तो वापस आ गई। वो ख्वामखा चिढ़ गई, फिर इधर उधर बर्तनों में हाथ मारती बाहर कुछ तलाश करने लगी। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा नाश्ता तो कर लो। नहीं, भूख नहीं है। वो बस मंजर से हटना चाहती थी। सो इतना कहकर वो बाहर लॉन्च में आ गई। जहन अभी तक अलमारी में कपड़ों के नीचे छुपी इस स्याह जिल्द वाली किताब में अटका हुआ था। फिर घर के काम काज, सफाई और इसके बाद मुसरत के साथ मशीन लगाए वो मेकान के अंदाज में खामोशी से काम करती गई। मुसलसल इसका दिल बार बार पलटकर इस किताब की तरफ जाता। वो कई बार कमरे में आई और कपड़ों के नीचे हाथ थपथपा कर देखा, वो स्याह किताब वहीं रखी थी। फिर सारा दिन वो मौका ढूंढती रही कि इसे जाकर पढ़े, कुछ तो पता तो चले, कोई राह तो निकले। मगर कामों का बोझ और कुछ फितरी सा खौफ था जो इस किताब को निकालने की हिम्मत ना कर सकी। रात खाने के बाद जब इसने सबको डाइनिंग हॉल में, सबको स्वीट डिश में मसरूफ़ पाया तो बिलाकर अलमारी से वो किताब निकाली और इसे सीने से लगाए दबे पाँव ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती गई। डाइनिंग हॉल से आरास्ता किचन की तरफ जाती महताब ताई ने चौंक कर इसे आखिरी सीढ़ी फलांगते देखा। ये महमल क्या करती फिर रही है आज? इन्होंने पीछे से चाची नाइमा को आते रोककर सरगोशी की। अभी कोई किताब पकड़े ऊपर गई है। वाकई सच कह। अच्छा। वो मुतजस्सिस सी ताई के पास आई। पढ़ाई वढ़ाई तो अब ख़त्म है और छत पर तो कभी भी नहीं गई है पढ़ने के लिए। ज़रूर दाल में कुछ काला है। और इनकी सरगोशियों से बेखबर वो बाहर टेरेस पे निकल आई, आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और रेलिंग के साथ नीचे ज़मीन पर बैठ गई। किताब घुटनों पे रखे वो कितनी देर इसको देखती रही। महरूमियों, नारसाइयों, दुखों के इस कई बरस पुराने करब की अब जैसे इंतहा हो चुकी थी। इससे अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता था। गलत हो या सही, वो ज़िंदगी से अपना हिस्सा ज़रूर वसूल करेगी। एक ठोस और हतमी फ़ैसला करके महमल इब्राहिम ने स्याह जिल्द वाली किताब पर हाथ रखा। वो बेहद सर्द थी, ठंडी और पुरसकून। वो जिल्द पलटने ही लगी थी कि टेरेस का दरवाज़ा एकदम धड़ाम से खुला। इसने घबरा कर सर उठाया और एक लम्हे को ज़मीन आसमान इसकी निगाहों में घूम गया। आगा जान, दोनों चचा, ताई महताब, चची नाइमा, चची फ़िज़ा, लड़कियाँ और मुसरत भी सब एक साथ बाहर आए थे। ये क्या हो रहा है यहाँ? आगा जान गुस्से से गुर्राए थे। महमल क्या कर रही हो इधर? वो हक्का बक्का मुंह खोलकर इन्हें देखती रह गई। इधर क्या बैठी हो, सामने आओ। ताई महताब चमक कर बोली और इसकी तो जैसे टांगों में जान ही नहीं रही थी। वह मुश्किल उठी और 2 कदम आगे बढ़ी। किताब इसी तरह हाथों में पकड़ी थी और पूरा जिस्म लरस रहा था। वो आगा जान, मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर को यहाँ क्या कर रही हो? मैं पढ़ रही थी। लफ्ज़ लबों पर ही दम तोड़ गए। इसकी टांगें कांपने लगीं। क्या पढ़ रही थी? इधर दिखाओ। आगा जान के लहजे की सख्ती कम ना हुई थी। इन्होंने किताब लेने को हाथ बढ़ाया तो वह बदक कर पीछे हटी। कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसने किताब पीछे करना चाहिए और फिर इसने देखा आगा जान के पीछे खड़ी मुसरत की आंखों में आंसू थे और ताई फातेहाना मुस्कुराई थी। अरे हम भी तो देखें, भरी रात में किताबों में छुपाकर कौन सी खतों किताबत हो रही है। मैं तो पहले ही कहती थी ये लड़की कोई चांद ज़रूर चढ़ाएगी। इसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे। नहीं ताई नहीं। वो फटी फटी निगाहों से देखती नफ़ी में सर हिला रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पढ़। आगा जान ने ज़ोर से इसके हाथ से किताब छीनी। पढ़ रही थी तो दिखाती क्यों नहीं हो? एक उसीली निगाह इस पर डालकर इन्होंने किताब अपने सामने की। मैं भी कहूँ, क्यों रातों को छत पर आ जाती है? किसके साथ मुंह काला करती है जो इतनी लंबी ज़ुबान हो रही है? अरे मैं भी कहूँ, कोई तो है इसके पीछे आगा साहब। इसे कहिए जिस मरदूत को चिट्ठियाँ डालने की यहाँ आती है वो अभी आए और इसे 2 बोल पढ़वा कर अभी ले जाए। ख़ानदान भर में बदनाम करेगी हमें क्या? और इसे लगा आज वो वाक़तन हार गई है। आगा जान सफ़े पलट रहे थे। हर पलटते सफ़े के साथ इसका दिल टूट रहा था। इसने सर झुकाकर आंखें सख्ती से मींच लीं। आज वह इसे यकीनन कत्ल कर डालेंगे। वह सफली अमलियात में पड़ गई, कभी मुआफ़ नहीं बख्शेंगे। शर्म नहीं आती तुम्हें घटिया औरत? आगा जान एकदम थाड़े तो इसकी रही से ही जान भी निकल गई। इसे लगा वो लहरा के गिरने को है जब मैंने क्या किया है? ताई की हकलाती आवाज़ निकली। महमल ने जैसे किसी ख्वाब से जाकर सर उठाया। वो खुली किताब हाथ में पकड़े महमल से नहीं ताई से मुखातिब थे।
तुम्हें शर्म नहीं आई इस यतीम बच्ची पर इल्ज़ाम लगाकर हम सबको इकट्ठा करके? डूब मरो तुम। ऐसे अल्फाज कहने से पहले वो अब छत पर पढ़ भी नहीं सकती। महमल ने पलकें ज़ोर से चपकाईं। ये आगा जान क्या कह रहे थे? मगर आगा साहब, वो इस किताब में डूब मरो तुम बेदीन औरत, वो कुरान पढ़ रही थी। तुम कुरान की हुर्मत का तो पास रख लेती। इन्होंने स्याह किताब बंद की, इसे चूमा, आंखों से लगाया और महमल की तरफ बढ़ा दिया। बेटा नीचे पढ़ लेती तो सब परेशान नहीं होते। ये लो। वो इसे किताब थमाकर एक कुटिली निगाह इस औरत पर डालकर वापस हो लिए। ना तो अब चोरों की तरह पढ़ेगी तो बंदा शक तो करेगा ही, वरना मेरा क्या दिमाग ख़राब है जो ऐसा कहती। ताई शर्मिंदा से पलटी। आगा जान कभी कभार इन्हें यूं ही सबके बीच में छिड़क दिया करते थे, खसूसन जब वो अपने रिश्तेदारों पर बेतरीक पैसे लुटाया करती थी। और नहीं तो क्या, सब नादिम से पलटे थे। वो इसी तरह साख्त सी किताब हाथ में लिए खड़ी थी। टेरेस खाली हो चुका था, सब जा चुके थे, पुरसकून और सुरखरू मुसरत भी, और वो इसी तरह पत्थर का बुत बने वहाँ खड़ी थी। इस किताब का हर सफ़ा तुम्हारे गुजरे दिन की रवादार है। ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी। तुम सबको अपनी मुट्ठी में करके दुनिया पे राज करोगी। इस स्याह फाम लड़की का एक एक फिक्रा तमाचे की तरह इसके मुंह पर बरस रहा था। तड़ाख तड़ाख तड़ाख। इसे लगा वो कभी अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी। यूं ही सदियों इस अंधेरे टेरेस पर खड़ी रहेगी। धोखा, मजाक, फरेब, तमसाकर, कुरान की बेहुरमती। इस स्याह फाम लड़की ने क्या नहीं किया था? इतना बड़ा मजाक। इस स्याह फाम लड़की ने एक परेशान हाल लड़की को सबस बाग दिखाकर इसकी ही मुकद्दस किताब थमा दी। ये हुआ क्या था इसके साथ? इसके हाथ अभी तक लरस रहे थे। निहायत बेयकीनी के साथ इसने स्याह जिल्द वाली किताब को चेहरे के सामने किया। स्याह जिल्द साफ थी, बेदाग, बेलफ्ज़। इसने दरमियान से किताब खोली। ऊपर अरबी की इबारतें थी और नीचे अंग्रेज़ी में। सबसे ऊपर लिखा था द केव अल कहफ। इसने चंद सफ़े आगे खोले। द स्पाइडर अल अनकबूत। इसने शुरू से देखा। द टेबल स्प्रेड अल मुआइदा। महमल ने किताब बंद कर दी। आगा जान ने ठीक कहा था, वो कुरान था, इनकी मजहबी किताब, मुकद्दस किताब। और इस फिरंगन ने कैसे कैसे किस्से गढ़ दिए थे इसके साथ। जलील औरत। वो शौक से बाहर निकली तो इसे गुस्सा आ गया था। वो लड़की तो घर बैठी इस पर हंस रही होगी, इसका तमसा कर उड़ा रही होगी, और वो भी कितनी जल्दी बेवकूफ़ बन गई। उफ। वो तेज़ तेज़ कदमों से सीढ़ी की तरफ लपकी। न सर पर दुपट्टा, न वज़ू, नमाज, और चले हैं कुरान पढ़ने। हाँ, नीचे लाउंज पे बड़े सोफे पे बैठी ताई इसे सीने से नीचे उतरता देखकर बुड़बुड़ाई। बड़े अरसे बाद आगा जान ने इनको सबके सामने बेइज्जत किया था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ महमल की वजह से। इन्हें अब किसी न किसी तरह गुस्सा तो उतारना ही था। मगर महमल कोई भी जवाब दिए बगैर सर झुकाए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सुबह फिर वो जल्दी आ गई। स्याह फाम लड़की बहुत पहले से आकर बेंच पर बैठी थी। इसे देखकर महमल के कदम तेज हो गए। कदमों की चाप पर ही इसने सर उठाया। महमल ने देखा। इसे देखकर इसकी स्याह आंखों में उम्मीद के दिए जल उठे थे। सड़क खाली थी। दो नारंगी सूरज तुलू हो रहा था। महमल इसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। सूरज की नारंगी शुआएं इसके पीछे छुप गईं। तुम्हें शर्म तो नहीं आई होगी मेरे साथ ऐसा बेखुदा मजाक करते हुए? स्याह फाम लड़की की निगाहें इसके हाथ में पकड़ी किताब पर पड़ी। एकदम ही इसकी आंखों की जोत बुझ गई। मुसहफ वापस करने आई हो? मुसहफ? उकड़ी उकड़ी महमल ने आबरू उठाई। अरब वर्ल्ड, अरबी दुनिया में कुरान को मुसहफ कहते हैं। तुमने मुझे क्या किस्से कहानियाँ सुनाकर कुरान थमा दिया? ये कोई मजाक करने की किताब तो ना थी, ये तो कुरान था। कुरान नहीं, कुरान होता है। वो उदासी से मुस्कुराई तो महमल ने शाने उचकाए। बहरहाल तुम्हें ये प्रैक्टिकल जॉब करके मुझे शर्मिंदा करने पर शर्म आनी चाहिए। मैं तो क्या सोच रही थी, और तुमने मुझे मुकद्दस किताब थमा दी, तो तुम किसी गैर मुकद्दस चीज़ की तवक्को कर रही थी क्या? जी नहीं। वो तलमलाई, फिर कुरान इसकी गोद में रखा कि मेरे पास पहले से है, मुझे ज़रूरत नहीं है, बैठकर बात कर लो, मैं ठीक हूँ। वो इसी तरह सीने पर हाथ बांधे उकड़ी उकड़ी सी खड़ी थी। अच्छा। इसने प्यार से स्याह जिल्द वाले मुसहफ पर हाथ फेरा। तो तुमने ये पढ़ रखा है? इसके लहजे में सुबह की सारी उदासी समोई हुई थी। हाँ, और बचपन में ही पढ़ लिया था। अल्लाह का शुक्र है कि हम शुरू से ही मुसलमान हैं। वो आदतन जिता कर बोली। और तुम्हें हमारी मुकद्दस किताब को लेकर गलत फहमियाँ हैं। ये कोई फॉल निकालने वाली किताब नहीं है, ना ही इसमें मेरी और तुम्हारी स्टोरी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, चलो फिर बैठो और मुझे बताओ इसमें क्या क्या है। इसमें अहकामात हैं, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात के। वो इसके साथ बेंच पर बैठकर बहुत समझदारी से इसे बताने लगी। इसमें पुरानी कौमों के किस्से हैं, कौम नमूद, कौम आद और बनी इसराइल। ये बनी इसराइल का क्या मतलब होता है? मतलब? वो हल्का सा गड़बड़ाई। बनी इसराइल का मतलब हुआ इसराइल के बेटे। वो बता रही थी या पूछ रही थी, खुद भी ना समझ सकी। इसराइल का मतलब अब्दुल्ला होता है। इल अल्लाह को कहते हैं। ये याकूब का नाम था। हाँ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सब पढ़ रखा है मैंने।
सब पता है मुझे। यूसुफ और जुलेखा का किस्सा तो कोर्स में पढ़ाया गया है हमें। यूसुफ और किस वाला? स्याह-फाम लड़की की आंखों में हैरत उभरी। यूसुफ और जुलेखा वाला किस्सा? अजीज़ मिस्र की बीवी का नाम जुलेखा था क्या नहीं था? वो कंफ्यूज हो गई। कोई दलील है तुम्हारे पास? कोई हुज्जत? दलील हुज्जत? वो टुकर टुकर इसका चेहरा देखने लगी। हमारे कोर्स की गाइड बुक में लिखा था। कोर्स की गाइड बुक इंसान की बात है और इंसानों की बात में दलील नहीं होती। दलील बस कुरान और हदीस से बयान की जाती है, क्योंकि दोनों नाजिल खुदाबंदी होते हैं। कुरान और हदीस में और इसराइलियात में कहीं भी नहीं बताया गया कि इस औरत का नाम जुलेखा था। इसका लहजा नरम था। मिस्र की इस औरत से एक जुर्म सरजद हुआ था, मगर अल्लाह ने इसका पर्दा रख लिया था। इसका फ़ेल तो बताया पर नाम नहीं। पर जिस चीज़ पर अल्लाह पर्दा रखे वो खुल नहीं सकता। मगर हमने यूसुफ और जुलेखा के किस्से हर मस्जिद और मुनीर पर जाके सुने। हम कैसे लोग हैं तो क्या उसका नाम जुलेखा नहीं था? वो सारी खुफकी भुलाकर हैरत से पूछ रही थी। उसका नाम एक राज है और अल्लाह वो राज नहीं खोलना चाहता, तो ये हमेशा राज ही रहेगा। अच्छा, इसने शाने उचकाए। पहली बार इसे अपनी कम इल्मी का एहसास हुआ था, मगर ये मानना इसकी अना की शिकस्त थी। सो लापरवाही से इधर उधर देखते बोली, बहरहाल मुझे अफसोस है, कुरान को लेकर तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत है। ये किताब वो नहीं है जैसा तुम समझती हो, और अगर ये वो ना हुई जैसा तुम इसे समझती हो तो मैं सही हूँ, मुझे सब पता है। तुम्हें जो कोई इस नूर की तरफ बुलाएगा तुम इसे ऐसा ही कहोगी। मगर तुमने ये तो नहीं बताया था कि ये कुरान है। तुमने तो कुछ और ही किस्से सुनाए थे। आखिर क्यों? अगर मैं तुम्हें तबलीग करती तो तुम मुझसे उकता कर दूर भाग जाती। अब भी तो यही होगा। वो जिता कर बोली तो स्याह-फाम लड़की ने मुस्कुराकर सर झटका। लेकिन अब तुम्हारी हुज्जत तमाम हो चुकी है, आगे तुम्हारी मर्जी। एक स्याह मर्सिडीज सन करके इनके सामने से गुजरी। थोड़ी दूर जाकर इसके टायर चिड़चिड़ा कर रुके और वो तेज़ी से रिवर्स हुई। महमल ने चौंक कर देखा, ड्राइविंग सीट पर फवाद था। वो हैरान सी खड़ी थी। वो इसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। वो जैसे खुल के मुस्कुराई और बेंच पे रखा बैग कंधे पे डाला। स्याह-फाम लड़की ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा और फिर महमल की मुस्कुराहट को। तुम्हारे पास दो रास्तों का इंतखाब था, मुसफ़ या दिल। तुमने अपना इंतखाब कर लिया, मगर मुझे सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हें मुसफ़ की तरफ नहीं ला सकी। अब तुम्हें जो भी ले आए मेरा इसमें कोई हिस्सा ना होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। स्याह मुसफ़ वाली किताब को सीने से लगाए, अपने बैग को कंधे से लटकाए, खाली सड़क पर एक जानिब चल पड़ी। महमल ने देखा वो लंगड़ा रही थी। वो सर झटक कर गाड़ी की तरफ चल दी। जी फवाद भाई, इसने फ्रंट सीट वाले खुले शीशे से झुककर पूछा। आओ बैठो। मगर वो मुतज़ब्ज़ब हुई। खैर तो कॉलेज का कहकर आई थी। कॉलेज क्यों जाना है? ऐसे फ्रेंड्स गेट टुगेदर कर रही हैं, फिर कभी चली जाना, अभी बैठो। वो हुक्म देकर जैसे कुछ सुनने के मूड पे ना था। वो मुस्कुराहट दबाए बैठी और दरवाज़ा बंद किया। विंडो स्क्रीन के उस पार स्याह-फाम लड़की लंगड़ा कर जाती हुई दूर होती जा रही थी। महमल को नहीं पता था वो इसे इस उदास सुबह में आखिरी बार देख रही है। इसका नाम क्या था, वो किधर से आई थी, वो कुछ नहीं जानती थी। मगर इस लम्हे इसे जाते देखकर इसे एहसास हुआ कि वो बस स्टॉप पर बस के लिए नहीं आती थी, और शायद इसके बस पकड़ लेने के बाद यूं ही चली जाती थी। हम कहाँ जा रहे हैं फवाद भाई? फवाद ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो वो पूछ बैठी, तो मुझे भाई कहना छोड़ नहीं सकती? वो क्यों? धड़कन बेतरतीब हुई, मगर वो सादगी से बोली थी, ऐसे ही। पर हम जा कहाँ रहे हैं? ऑफिस, बताया तो था। स्टीयरिंग पर हाथ रखे ज़रा सा चेहरा इसकी तरफ मोड़ा और मुस्कुराया। ऑफिस? आपके वो वाक़तन हैरान हुई थी, मगर आगा जाने तो मना किया था। इनसे तो मैंने रस्मन पूछा था, वो लापरवाह था। और हसन भाई ने भी। जहन्नुम में गया हसन। तुम ऑफिस जाना चाहती हो कि नहीं? जाना चाहती हूँ। इसके बिगड़ने पर वो जल्दी से बोली। वो खुलकर मुस्कुरा दिया। ऐसे ही एतमाद से ज़िंदगी गुजारोगी तो खुश रहोगी, वरना लोग तुझे हज़म कर जाएंगे। ज़िंदगी से अपना हिस्सा वसूल करना सीखो लड़की। वो बहुत मूड में ड्राइव कर रहा था और वह यकटक इसे देखे जा रही थी। इसे तो कुछ भी करना ना पड़ा था और किस्मत इस पर मेहरबान हो गई थी। और ये जोड़ा तुमने पहन रखा है, मैं गालिबन पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। 3 साल से, इसने तस्दीक की। अमेजिंग। ये तुम्हारी कज़न्स तो 3 बार से ज़्यादा जोड़ा नहीं पहनती, और तुम? ये 3 साल पहले ईद पर बनवाया था। महमल ने कुर्ते के दामन पर हाथ फेरते बगौर इसे देखा। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि नए जोड़े बनवा सकूं। आगा जान तो बस ईद के ईद कपड़े बनवाने के पैसे देते हैं। इसका दिल न जाने क्यों भर आया। आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू फिसले थे। अरे नहीं महमल, ऐसे नहीं रोते। इसके रोने पर वो परेशान सा हो गया और गाड़ी साइड पर रोक दी। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, और जब तक मैं हूँ तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसने सर उठाया तो पूरी आंखें भीगी हुई थी।
اور ابھی آفس نہیں جاتے؟ جناس اوپر چلتے ہیں، وہاں سے تمہارے لیے ڈیزائنر ویئر لیں گے۔ تم بہت خوبصورت ہو محمل، تمہیں خوبصورت چیزیں ہی پہننا چاہیے۔ وہ اس کے بہت قریب مخمور سا کہہ رہا تھا، پھر چونکا اور سیدھا ہو کر اگنیشن میں چابی گھمائی۔ وہ سر چکائے ہتھیلی کی پشت سے گیلے رخسار رگڑنے لگی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ اگر جو تائی ماں کو پتہ چلے کہ ان کا یہ ولی عہد میرے آنسوں کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو کتنا مزہ آئے۔ فواد تڑپ کا وہ پتہ تھا جس کے ذریعے اس نے ان سب سے انتقام لینا تھا۔ وہ اسے ڈیزائنر آؤٹ لیٹس پہ لے گیا۔ محمل ایک دو دفعہ ہی ندا سامیہ کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ رنگوں، خوشبوؤں اور خوابوں کی سرزمین، چمکتے سنگ مرمر کے فرش اور قیمتی ملبوسات۔ اسے لگا وہ کسی خواب میں چل رہی ہے۔ سب کچھ جیسے واقعی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا، اور اندر ہی اندر وہ خوفزدہ بھی تھی۔ آج کل ایسی شرٹس کا فیشن ہے، اور جیسی کرتیاں تم پہنتی ہو۔ ایک تنقیدی نگاہ اس پر ڈال کر اس نے ایک جدید تراش کراش کے لباس کا ہینگر اتارا اور اس کے کندھے کے ساتھ لگایا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تمہیں کیسے لگا؟ اچھا ہے۔ وہ تو جیسے بول ہی نہیں پا رہی تھی کہ پیک کرتے۔ اس نے ہینگر بے نیازی سے سیل گرلز کی طرف بڑھایا اور دوسرے ریک کی طرف پڑ گیا۔ سدرا کی منگنی کے لیے بھی کوئی نیا جوڑا تو لینا ہی ہوگا نا۔ سدرا باجی کی منگنی؟ وہ چونکی۔ ہاں اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور نیکسٹ سنڈے اس کی منگنی ہے۔ تمہیں نہیں پتا؟ وہ فارملز کے ریک پر کپڑے الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ نہیں، وہ گھر میں غائب دماغ رہتی تھی یا تائی اماں لوگوں نے بات چھپا کر رکھی تھی۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ یہ منگنی کے فنکشن کے لیے لے لو، اچھا ہے نا؟ اس نے ایک نارمل سا جوڑا نکال کر اس سے پوچھا۔ محمل اس کے قریب چلی آئی۔ پیکاک گرین رنگ کی سیدھی لمبی سی شرٹ اور ساتھ سلور چوڑی دار پجامہ، گہرے سبز رنگ کی قمیض کے گلے اور دامن پر بھی موتیوں کا نازک کام تھا۔ ٹپیکل نہیں ہے پر بہت کلاسک ہے۔ یہ بھی پیک کر دیں؟ اس کے چہرے پر پسندیدگی دیکھ کر اسے بھی سیل گرل کو تھما دیا۔ بس بہت ہے فواد بھائی، میں یہ سب کیسے لے کر جاؤں گی گھر؟ جب وہ اگلے بوتیک کی طرف پڑھا تو اس نے گھبرا کر روکا۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ چلو پھر کوئی چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں، جوتے، پرفیومز، کاسمیٹکس، جیولری۔ سبز اور سلور جوڑے کے ساتھ میچنگ کانچ کی چوڑیاں دلوا کر اس کے بس اصرار پر بالآخر فواد نے بس کر دی۔ میرا دل کرتا ہے محمل میں تمہیں پوری دنیا خرید کے دے دوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور وہ اسی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے گمسم سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی سب تو چاہا تھا اس نے، پر کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ پھر وہ اسے فیکٹری لے آیا۔ ہیڈ آفس میں پاپا اور حسن ہوتے ہیں، اسد چچا اور غفران چچا پنڈی والے برانچ میں ہوتے ہیں، جبکہ میں فیکٹری سائٹ پر ہوتا ہوں۔ تم آج سے روز ادھر میرے ساتھ کام کرو گی، میں تمہیں آہستہ آہستہ سب کام سکھا دوں گا، ٹھیک؟ ٹھیک ہے، مگر میں گھر میں کیا کہوں گی؟ تم ٹیوشن پڑھانے جاتی ہو نا، تو بس تمہیں ایک ٹیوشن اور مل گئی ہے جس کی پے سے تم نے اتنی ساری شاپنگ کر لی۔ مسرت چاچی کو شاپنگ کے بارے میں یہی کہہ دینا، اور باقیوں کو کچھ سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رائٹ؟ اب چائے لوگی یا کافی؟ وہ سیٹ سنبھالتے بے نیازی سے ہدایت دیتا فون کی طرف پڑھا تو وہ طمانینت سے مسکرا دی۔ کافی؟ اور اس کے مقابل کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ گڈ۔ وہ بھی مسکرایا۔ مسکراتے ہوئے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اس دن فواد نے اسے کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ بس ادھر بیٹھ کر مجھے آبزرو کرو اور سیکھو کہہ کر اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ کام کرتے کرتے گاہے بگاہے وہ اسے مسکرا کر دیکھتا تو وہ ہنس پڑتی۔ وہ دن اس کو اپنی زندگی کا یادگار دن لگا۔ اماں مجھے دوسری ٹیوشن بھی مل گئی ہے، سو اب صبح جایا کروں گی۔ مسرت اپنے کاموں میں الجھی تھی، سو اس نے دھیان نہ دیا اور اس نے سارے کپڑے اور چیزیں الماری میں رکھ دی۔ پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ نادیہ کے والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے لی اور صبح سے شام ٹلے فواد کے ساتھ فیکٹری چلی جاتی تھی۔ اس نے آغا جان سے پیسے مانگنے چھوڑ دیے تھے، اور جب سدرا کی منگنی کے کپڑے بنوانے کے لیے آغا جان نے چند 100 روپے دینے چاہے تو اس نے بے نیازی سے انکار کر دیا۔ تھینک یو آغا جان، پر میرے پاس پہلے ہی بہت ہیں، 3 ٹیوشنز پڑھا رہی ہوں، میرے خرچے پورے ہو ہی رہے ہیں، پھر بھی اگر چاہیے ہوں گے تو آپ سے مانگ لوں گی۔ آغا جان اور تائی مہتاب نے پھر کبھی اس کے شام کو گھر آنے پر اعتراض نہیں کیا۔ محمل ان سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتی، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی وہ کان میں جھمکا پہن رہی تھی۔ جھمکا چاندی کا تھا، اس کے سلور چوڑی دار پجامہ جیسا، اور سبز قمیض پر بھی ایسا کام تھا، اور دوپٹہ تو ایسا تھا جیسے سبز آسمان پر تارے بکھرے ہوں۔ چھوٹی آستین سے اس کے نرم گداز بازو نمایاں تھے، اور گوری کلائی میں سبز اور سلور چوڑیاں، ہلکا سا میک اپ اور سنہرے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ جھمکا کان میں جا کے ہی نہیں دے رہا تھا، وہ چوڑیوں پر دونوں ہاتھوں سے کان کے سوراخ میں جھمکا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب باہر لان میں جمع تھے، منگنی کا فنکشن شروع تھا، بس ایک اس کی تیاری باقی تھی۔ اوفو، اس نے چلا کر جھمکا کان سے ہٹایا، کان کی لو سرخ پڑ چکی تھی۔ اب کیا کروں؟ اسی پل آئینے میں اس کے سامنے فواد کا چہرہ ابھرا۔ فواد بھائی آپ ادھر؟ وہ حیران سی پلٹی۔ سب تو باہر ہیں،
तुम भी तो इधर हो। वो इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। ब्लैक सूट में वो इतना स्मार्ट बंदा बिना पलक झपके मबहूत सा इसे देखे जा रहा था। इसकी नज़रें बिला इरादा ही झुक गईं। तुम कितनी खूबसूरत हो महमल। महमल का दिल ज़ोर से धड़का। इसने वो मुश्किल पलकें उठाई। वो इन्हीं मखमूर निगाहों से इसे देख रहा था। इसकी नज़रों की हिद्दत से इसके रुखसार सुर्ख पड़ने लगे थे। वो झुमका पहना नहीं जा रहा। वो घबरा कर इधर उधर देख कर बोली, इधर दिखाओ। फवाद ने इसके हाथ से झुमका लिया, ज़रा सा झुका, एक हाथ से इसका कान पकड़ा और दूसरे से झुमका डाल दिया। लो, इतनी सी बात थी और तुमने पूरा कान सुर्ख कर डाला। इसने नरम लहजे में कहते हुए इसके पूरे बालों को छुआ और पीछे हट गया। वो भी संभल कर झुमके का सहारा लगाने लगी। एकदम ही फवाद कुछ कहे बिना बाहर चला गया और वह पीछे लम्हे के फंसों में खोई हुई थी। चौंक कर पलटी, वो दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। ये क्या? वो उलझकर आईने की तरफ पलटी तो ठिठक गई। हसन सीढ़ियों के ऊपर खड़ा तीखी नज़रों से इसे देख रहा था। वो गड़बड़ा कर जल्दी से बालों में ब्रश फेर कर जाने लगी, मगर हसन सीढ़ियाँ तेज़ तेज़ फलांगता पीछे आया और अगर आज के बाद मैंने तुझे फवाद के 10 फुट के करीब भी देखा तो टांगे तोड़कर घर बिठा दूंगा, समझी? गुस्से से इसकी कलाई पकड़कर इसने इतनी ज़ोर से झटका दिया कि इसकी चीख निकल गई। हसन भाई, आई समझ के नहीं। इसने दोबारा झटका देकर इसकी कलाई छोड़ी और एक हसीली निगाह डालकर लंबे लंबे टक पड़ता बाहर चला गया। वह साख्त सी अपनी जगह पर खड़ी रह गई। इसने सबस चूड़ियों वाली कलाई पकड़ी थी और आधी से ज़्यादा चूड़ियाँ तड़ तड़ टूट कर गिरने लगी थीं। बहुत सा कांच इसे चुभ गया था और जगह जगह से खून के कतरे रसने लगे थे। ये हसन भाई, इन्हें क्या हुआ? वो दुख से अपनी कलाई देखती रह गई थी। सबस कांच के टुकड़े ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। इसकी आंखों में आंसू आ गए। यतीम होने का ये मतलब था जिसका दिल चाहे इस पर हाथ उठाए। वो आंसू पीती अंदर के जख्मों को मुश्किल मरहम लगाती ज़मीन से कान चुनने लगी। दिल चाह रहा था वो बहुत रोए, मगर खुद को संभालते वो दूसरी चूड़ियाँ पहनकर बाहर आ गई। सिद्रा बड़े सोफे पर दुल्हन की तरह सजी संवरी बैठी थी। आम सी शक्ल की सिद्रा बहुत मेकअप के बाद भी आम सी ही लग रही थी। इसका मंगेतर खासा मोटा था और खासा शर्माया हुआ भी। इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि कोई मुतासर होता। और निदा सामिया मुस्कुरा कर जलाए हुए तबसरे भी कर रही थी। सुनने में आया था वो महताब की किसी सेकंड कज़न का बेटा था। यही इस्लामाबाद में एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था। जाने कब रिश्ता आया और हाँ हुई। इसे और मुसरत को तो गैरों की तरह खबर दी गई। लॉन में कमकमों और रोशनी की बहार थी। वो जिस वक्त बाहर आई इस वक्त रस्म हो रही थी और समधे एक दूसरे को मिठाई खिला रही थी। सब हंस बोल रहे थे। वो खामोशी से घास पर चलती हुई एक कुर्सी पर आ बैठी। इसका दिल उदास और आंखें गमगीन थी। फवाद भी वहीं स्टेज पर किसी बात पर हंसता हुआ अपने बहनोई को मिठाई खिला रहा था। महमल ने इर्द गिर्द मतलाशी निगाहों से देखा। स्टेज के सामने खास पर साड़ी में मलबूस फिजा अपनी किसी जानने वाली खतून से हसन का तारुफ करवा रही थी। हसन का पासो थामे बहुत फ़ख्र से वो हसन के बारे में बता रही थी और वह मुस्कुराते हुए इस औरत से बात कर रहा था। इसने भी ब्लैक डिनर सूट पहन रखा था और बिला शिबा वो भी बहुत गुड लुकिंग था। महमल ने इसे देखा। इस पल इसे हसन से बड़ा मुनाफिक और दोगला बंदा कोई ना लगा। हसन ने इसकी नाजुक कुलाई को ही नहीं इसके दिल को भी ज़ख्मी किया था। सारे फंक्शन का मज़ा ख़राब कर दिया था। वो इतनी बददिल और गमज़दा होकर बैठी थी कि इसे पता ही नहीं चला कब वसीम इसके साथ आकर खड़ा हो गया। आज कितनों को गिराने का इरादा है सरकार? वो एकदम पास आकर बोला तो वो उछली। वो अपने अजला लोफराना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। बड़े लिश्कारे हैं छोटी कज़न, खैरियत? वो मायनी केस मुस्कुराया तो वो घबरा कर उठी और लड़कियों के ग्रुप की तरफ बढ़ गई। साथ ही बार बार पीछे मुड़कर देखती। वसीम इधर उधर घूमते मुसलसल इसे अपनी निगाहों के हसार में लिए हुए था। वो बचती बचाती लोगों में ही घिरी रही। वो सब कज़न्स बहुत खुश और एक साथ मुकम्मल नज़र आ रहे थे। सिर्फ वो एक फालतू किरदार थी। हालांकि कितनी ही औरतों ने पूछा था ये सब्ज और सिल्वर सूट वाली लड़की कौन है। वो थी ही इतनी मुनफरिद और दिलकश और हर शय से बेखबर। वो सारा वक्त अफसरदा ही रही। सिद्रा की मंगनी पर जितने शुगल और मज़े का इसने सोचा था इससे बढ़कर बदमज़ा हुई थी। फवाद इसे ऑफिस में छोटे मोटे काम देने लगा। ज़्यादातर सुपरविजन का काम देता। ये ड्राफ्ट बनाना है, अपनी निगरानी में फ़ाइनेंस के जाकिर साहब से बनवा लाओ, इस चेक पर साइन करवाना है, फ़लाँ साहब से करवा लाओ। और ये सारे काम बहुत एतमाद तलब होते हैं। इसे अच्छा लगता था। वो इस पर भरोसा करता है, इसका ख्याल करता है। वो एक साथ ही लंच करते थे। बाकी वक्त वो ऑफिस में काम करता और महमल अपने कैबिन में बैठी दूसरों का बगौर मुशाहिदा करती। कभी कभी इसे एहसास होता कि इतने दिन गुजर जाने के बाद ना तो वो काम को ठीक से समझ पाई और ना ही फवाद के ज़्यादा करीब आ पाई। वो हमेशा इसकी पसंद की चीज़ें मंगवाता, इससे इसके मुशागिल और स्टडी के बारे में हल्की फुल्की गपशप भी करता, मगर इस शाम आईने के सामने झुमका पहनाने जैसी बेखुदी और जुर्रत दोबारा नहीं की थी।
इस रोज़ सुबह फवाद के साथ वो ऑफिस नहीं गई थी। दोपहर में स्टॉप पर आना, मैं पिक कर लूँगा। आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो सुबह धीरे से कह गया था। और अब वो मसरूर दोपहर का इंतज़ार करती ऊपर टेरेस पर बैठी चाय पी रही थी। जाने फवाद को क्या बात करनी थी, इतना क्या ख़ास काम था। वो टांग पे टांग रखे चाय की सिप लेती सोच रही थी। निगाहें यूं ही साथ वालों के लॉन में पटक रही थी। वहाँ घास पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी और इन पर सफ़ेद सलवार कमीज़ और सफ़ेद टोपी पहने मदरसे के बच्चे हिल हिल कर कुरान पाक पढ़ रहे थे। दरमियान में एक छोटी सी मेज़ पड़ी थी जिस पर एक बड़ा कुरान पाक और कुछ सपारे पड़े हुए थे। साथ ही अगरबत्तियाँ चल रही थी। वो बिला इरादा ही बड़े बंद कुरान को देख के गई। सहन के निगाह खानों से वह चेहरा निकल कर इसके सामने आ गया। स्याह फाम लड़की का चेहरा, स्याह आंखें और मोटे मोटे स्याह होंठ। वो मुसक को सीने से लगाए लंगड़ाते हुए सड़क पर दूर जा रही थी। कभी कभी इसे लगता जाते हुए इसकी आंखों में आंसू थे। वो क्यों रो रही थी, इसे समझ नहीं आई थी। इस तरह बच्चे हिल हिल कर सिपारे पढ़ रहे थे। इसने देखा कोने पर बैठे हुए एक बच्चे ने सफ़ा पलटते हुए इधर उधर देखा और 2-3 सफ़े एक साथ पलट दिए और फिर बुलंद आवाज़ में लहक लहक कर पढ़ने लगा। ना चाहते हुए भी महमल हंस दी। वो छोटा सा बच्चा अपनी दानिश में आसपास के लोगों को धोखा दे रहा था या फिर रब को, वो जान नहीं पाई। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उठ के सिपारे रखने लगे, यहाँ तक कि सारे सिपारों का वापस ढेर मेज़ पर लग गया। तो कारी साहब ने पास खड़े मुलाजिम को बुलाया। कुरान ख्वानी हो चुकी है, ब्रिगेडियर साहब को बुला दें, आकर दुआ शुरू कर लें। मुलाजिम सर हिलाकर अंदर चला गया। वो फवाद को भूलकर दिलचस्पी और तजस्सुस से रैकिंग पर झुकी सारी कार्रवाई देखने लगी। सर कह रहे हैं वो बिज़ी हैं, मगर आपका शुक्रिया कि आपने कुरान पढ़ा दिया। सर कह रहे हैं कि इन्हें सुकून नहीं है, बाकी सब ठीक है, बस यही दुआ करवा दें कि इन्हें सुकून मिल जाए। कारी साहब ने गहरी सांस ली और दुआ के लिए हाथ उठा लिए। वो जैसे शौक से सारा मंजर देख रही थी। दिल में नामालूम अफसोस सा उतर आया था, एक अजीब सा एहसास, नदामत, अजीब सी बेकली। वो इस एहसास को कोई नाम तो ना दे पाई, पर कप उठाकर नीचे आ गई। और फिर दोपहर को वो इस वाक़े को भूल भाल चुकी थी। स्टॉप पर टाइम पे फवाद की मर्सिडीज़ आती दिखाई दी तो वो खुश और पुरशौक बेंच से उठी। कैसी हो? वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठी तो वो मुस्कुरा कर जैसे बेताबी से पूछ रहा था। ठीक हूँ फवाद भाई, आप कैसे हैं? वो सादगी से कहकर बैग कंधे से उतार कर पीछे रखने लगी। अपने अंदाज से इसने कभी जाहिर नहीं किया था कि वो फवाद के जज्बात तक रसाई हासिल कर चुकी है। वो ख़ुद को हमेशा इसके एहसानों के बोझ तले ममनून जाहिर करती। आज का दिन बहुत स्पेशल है महमल। वो कार सड़क पर डाल के बहुत जोश से बता रहा था। आज मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। जी कहिए। अभी नहीं, अभी सरप्राइज़ नहीं खोल सकता। अच्छा ऐसा क्या है फवाद भाई, तुम खुद देख लेना। खैर अभी तो हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्पेशल लेना है, कपड़े, मगर अभी तो कोई फंक्शन करीब नहीं है ना? आज है कुछ खास। अच्छा कौन कौन होगा उधर? मैं और तुम। इसने मबहूम सा मुस्कुरा कर इसकी आंखों में देखा। ऑफिस में वो कुछ कुछ समझ रही थी मगर अनजान बनी रही। ओहो, मेरिट में आज हम साथ डिनर करेंगे। मेरिट? लम्हे पर को तो वो सांस लेना भूल गई थी। मेरिट में डिनर तो क्या, इसने तो कभी मेरिट के अंदर से शक्ल भी नहीं देखी थी। लेकिन फिर डिनर का लफ्ज़ इसी तरह परेशान कर गया। मैं इतनी रात को क्या कहकर बाहर रहूँगी फवाद भाई? नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे और आज रात मैं खुद तुम्हें घर लेकर जाऊँगा, मगर तुम्हारे जवाब के बाद। जवाब? किस चीज़ का जवाब? कुछ पूछना है तुमसे। इसका दिल ज़ोर से धड़का। क्या वो जो समझ रही थी सही था? मगर क्या? ये तो वही बताऊंगा। और कुछ कपड़े लेते हैं तुम्हारे। वो कार पार करके सीट बेल्ट हटा रहा था। मगर ये ठीक तो है, इसने मामूली सा एहतजाज किया। आज तुम्हें स्पेशल तैयार होना पड़ेगा। इसके अंदाज में नरम सी थोन्स थी। वो हंसकर अच्छा कहते नीचे उतरी। वो इसे एक खास महंगे बुटीक में ले गया। कपड़ों से ज़्यादा कपड़ों की कीमतें हवा उड़ा रही थी। वो खुद ही आगे बढ़कर कपड़ों को उलट पलट कर देखने लगा। फिर रुक कर पूछा, तुम्हें साड़ियाँ पसंद है महमल? साड़ियाँ? वो हैरान हुई। जी, मगर वो बहुत फॉर्मल है, कोई अगर मगर नहीं। ये साड़ी देखो कैसी है। इसने एक स्याह साड़ी आगे की। स्याह शिफॉन की साड़ी पर सिल्वर मुकेश बिखरी थी। ये इतनी खूबसूरत झुलमिलाती साड़ी थी कि नजरें खैरा करती थी। अच्छी है मगर बहुत कीमती। तुमसे ज़्यादा कीमती नहीं है, ये पैक करते। फिर मैचिंग जूते और एक नाक सिल्वर नगों वाला आर्टिफिशियल सेट लेते खासा वक्त लग गया। दोपहर ढलने लगी थी जब वो एक ज्वेलरी की शॉप में दाखिल हुए। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शॉप में महमल का दिल जोर से धड़का था। क्या फवाद इसके लिए कुछ इतना कीमती लेने जा रहा था? क्या वो इसके लिए इतनी खास थी? डायमंड रिंग्स दिखाइए। वो कुर्सी खींच के टांग पे टांग रखे बैठा कदरी तहकुम और रौब से बोला तो महमल तो सांस देना भूल गई। खुदा इस तरह छप्पड़ फाड़ कर भी मेहरबान होता है, इसे आज पता चला था।
मामर परिज तनार साहब ने फ़ौरन कुछ स्याह केस आगे किए और जैसे जैसे वो स्याह केस खोले जा रहा था, जिगर जिगर करती हीरे की अंगूठियों से इसकी आंखें चुंधिया रही थी। सर, मैं सॉलिटेयर दिखाऊं? हाँ बिल्कुल। वो तो बिल्कुल चुप बैठी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि रिएक्ट किस तरह करे। फवाद को कोई रिंग पसंद नहीं आ रही थी, वो इससे राय भी नहीं ले रहा था, बस धड़ाधड़ अंगूठियां रद्द करता जा रहा था। क्यों करो, तुम पहले तैयार हो जाओ, रिंग बाद में ले लेंगे। शॉप से निकलते हुए इसने घड़ी देखी। मेरी 6 से 7 एक मीटिंग है, बहुत ज़रूरी है, मिस नहीं कर सकता। 6 से 7 तुम्हें मेरे साथ ऑफिस में बैठना पड़ेगा और फिर 7 बजे हम इकट्ठे मैरिड के लिए निकलेंगे। सो तुम अभी तैयार हो जाओ। किधर? वो वाकई हैरान हुई थी। पार्लर में। और किधर? मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले ली थी, तुम सिर्फ अंदर जाना और वो तुम्हें तैयार कर देंगे। वो इसे क्रीबी पार्लर ले आया था और फिर वैसे ही हुआ जैसे इसने कहा था। महज 1 घंटे बाद जब इसने पार्लर के कद आदम आईने में खुद को देखा तो इसे खुद पर रश्क आया। स्याह मुकेश वाली दिलकश साड़ी में इसका दराज कद, स्याह सिल्वर पेंसिल हील के पाइस और नुमाया हो गया था। लंबी सुराही सी गर्दन, ऊंचे जूड़े के पाइस बेहद दिलकश लग रही थी। जूड़े से कुछ लट्टे गुंघराली निकलकर इसकी गर्दन और चेहरे पर झूल रही थी। लाइट लिपस्टिक के साथ ब्लैक स्मोकी आइज और ब्लैक ब्लाउज की छोटी बाजू से छिलकते इसके बेहद कोरे सुनहरे बाजू। जरा सी मेहनत से वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि खुद को देख देख कर इसका दिल नहीं भर रहा था। वो बाहर आई तो वो जो इसके इंतजार में गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था एकदम सीधा हुआ और फिर मबहूत सा इसे देखता रह गया। वो साड़ी का पल्लू उंगली पर लपेटे एहतियात से पार्लर की बाहर की सीढ़ियाँ उतर रही थी। इतनी हसीन हो तुम महमल, मुझे इतने बरस पता ही नहीं चला। वो जैसे मुतासिफ हुआ था वो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। थैंक यू, चलें। इसने आसमान को देखा जहाँ शाम ढलने को थी। हाँ, मेरी मीटिंग शुरू होने में ज़्यादा वक्त नहीं है, चलो। एक भरपूर मुस्कुराती निगाह इस पर डालकर वो कार का लॉक खोलने ही लगा था कि इसका फ़ोन बजा। इस वक्त कौन कहते कहते इसने स्क्रीन को देखा और जल्दी से सेल कान के साथ लगा लिया। जी मलिक साहब, खैरियत? जी क्या मतलब? इसने लब खींचकर कुछ देर दूसरी तरफ होने वाली बात सुनी। मगर आपने इनको बताया कि आपको मैंने ही भेजा है। मगर क्यों? इन्होंने साइन क्यों नहीं किए? और इसे एकदम फवाद के चेहरे पर उपड़ती गुस्से की लहर दिखाई दी। आप सीनियर ऑफिसर हैं या जूनियर? इन्हें इससे क्या गर्ज? आपको पता है मलिक साहब, अगर इन्होंने फाइल साइन ना की तो सुबह तक हमारी फैक्ट्री डूब जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। इसने रुक कर कुछ सुना और एकदम बदका। क्या मतलब? मैं इस वक्त कैसे आ सकता हूँ इतनी दूर? मेरी मीटिंग है सदीक साहब के साथ 6 से 7। मैं अभी एएसपी साहब से कैसे मिल सकता हूँ? क्या बकवास है? इसने चिल्लाकर फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ? वो घबरा कर करीब आई। मालूम नहीं क्या होगा अब। वो परेशानी से दूसरा नंबर प्रेस करने लगा। लम्हे भर को तो वजह से भूल ही गया था कि वो इसके साथ खड़ी है। जी राव साहब, मैंने मलिक इलियास को भेजा था आपकी तरफ, मगर राव साहब इतनी भी क्या बेतबारी। इसने रुक कर दूसरी तरफ से सुना और जैसे जब्त करता हुआ बेबसी से बोला, आपके एएसपी का दिमाग तो ठीक है, इसका बाप जागीरदार होगा गांव का, हम इसके मजारे नहीं हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि इनके एक फ़ोन कॉल पर भागा चला आए। और ना ही वो लम्हे भर को रुका और फिर मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ कहकर वो अब कोई और नंबर मिलाने लगा था। एएसपी हुमायूं दाऊद, न जाने क्या मसला है इस बंदे का। महमल बददिल से इसके साथ गाड़ी के बाहर खड़ी थी। न जाने क्या हुआ था, दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे। खैरियत है फवाद भाई? खैरियत ही तो नहीं है। एएसपी जान को आ गया है, कहता है कंपनी के मालिकों को भेजो तो फाइल अप्रूव हो गई। मैं मुलाजमों से बात नहीं करता, अब किसको भेजूं इधर? वो अभी इसी वक्त बुला रहा है और इसके घर पहुंचने के लिए आगा जान या हसन को 1.5 घंटा तो लग जाएगा और अगर ना पहुंचे तो मेरा करोड़ों का प्रोजेक्ट डूब जाएगा। वो चिल्लाकर किसी को बार बार फ़ोन मिलाता बहुत बेबस लग रहा था। अब यही हल है, मैं अभी इसके पास चला जाऊं और वापस आकर सदीकी साहब से मीटिंग कर लूं और डिनर कैंसिल। इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। करना पड़ेगा महमल। इसने हाथ रोककर महमल का तरीक पड़ता चेहरा देखा। आई एम सॉरी, मैं यूँ तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, मगर मेरी मजबूरी है। वो मुलाजिम से बात नहीं करेगा, घर के बंदे को ही जाना पड़ेगा। मैं भी मुलाजिम हूँ फवाद भाई। एक ख्याल सा महमल के दिमाग में उभरा। क्या मतलब? वो जैसे चौंका। अगर मैं आपके 2 कामों में से एक कर दूँ तो तब तो हम डिनर पर जा सकते हैं ना? वो हिचकिचा कर बोली कि कहीं बुरा ना मान जाए। अरे मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया? तुम भी तो कंपनी की ओनर में से हो, तुम भी तो ये फाइल साइन करवा सकती हो। बल्कि यूँ करते हैं, तुम फाइल को लेकर ड्राइवर के साथ चली जाओ जब तक मैं सतीकी साहब से निपट लेता हूँ और फिर ड्राइवर तुम्हें होटल ले आएगा। ठीक? इसने मिनटों में सारा प्लान तरतीब दे लिया। वो गहरी सांस भर के रह गई। ठीक है, फिर मैं चेंज कर लूँ? नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है। इस तरह तो तुम वाकई पुर एतमाद एग्जेक्टिव लग रही हो। ये सारी बिजनेस विमेन फॉर्मली ऐसे ही ड्रेसअप होती हैं। मैं ड्राइवर को कॉल कर लूँ? वो मुतमईन था मगर महमल को कतरे अजीब लग रहा था।
वो इतनी कीमती और चुलमिलाती साड़ी में किसी फंक्शन के लिए तैयार हुई लग रही थी, किसी ऑफिशियल मामले के लिए मौसू नहीं। लेकिन अगर फवाद कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। सारा रास्ता वो पिछली सीट से सर टिकाए आंखें बंद किए हीरे की अंगूठी के मुतालिक सोच रही थी, जो फवाद ने यकीनन इसके लिए ले ली होगी। और जब वो ताई अम्मा के सामने खड़ा महमल से शादी का कह रहा होगा, तब तो घर में सच्ची में तूफान आ जाएगा। मगर अच्छा है, ऐसा एक तूफान इन फिरौनों को लड़साने के लिए आना चाहिए। वो पुरसकून, पुरएतमाद और मुतमईन थी। गाड़ी तवील ड्राइव वे अबूर करके पोर्च में दाखिल हुई तो वो एक पुरसताइश निगाह खूबसूरत से लॉन पर डालकर गाड़ी से उतरी। मेन रोड पर जैसे एक सूटेड बूटेड उधेड़ उम्र शख्स जैसे इसका मुंतज़िर खड़ा था। एएसपी हुमायूं दाऊद, इसने जहन में अंदाज़ा लगाया और फाइल हाथ में पकड़े एतमाद से चलती इनके करीब आई। मैं आगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से। जी मैडम महमल इब्राहिम, आइए एएसपी साहब आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। इसने दरवाज़ा खोलकर रास्ता दिया। वो लम्हे पर को हिचकिचाई, फिर खुद को डपटते हुए आगे बढ़ी। रोशनियों से घिरा बेहद नफीस और कीमती सामान से आरास्ता घर अंदर से इतना खूबसूरत था कि खुद को संजीदा रखने के बावजूद इसकी नज़र बार बार भटक कर आस पास का जायज़ा लेने लगती। एएसपी साहब किधर हैं? वो अंदर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो इसके आगे तेज़ तेज़ चलता हुआ लाउंज में ले आया। सर ये पहुंच गई हैं। इसने लाउंज में कदम रखा तो एक शख्स को अपनी तरफ मतवज्जो पाया। वो टांग पे टांग रख के सोफे पर बैठा था। थोड़ी थोड़ी सी शेव पड़ी हुई थी और बाल माथे पर बिखरे हुए थे। ब्लैक कोट में मलबूस, जिसके अंदर सफ़ेद शर्ट के ऊपरी वाले 2 बटन खुले थे। एक हाथ में ऑरेंज जूस से भरा वाइन का ग्लास लिए वो इसे गौर से देख रहा था। एक लम्हे को तो महमल के कदम डगमगाए। इसका पाला तो अभी तक बस घर के लड़कों से पड़ा था। फवाद और हसन खुश शक्ल थे, कुछ दौलत की चमक धमक से भी स्टाइलिश लगते थे। बाकी इसके चचाओं में से कोई भी मुतासिरकुन शख्सियत का मालिक नहीं था। जितना सोफे पर बैठा वो मगरूर सा दिखने वाला शख्स था। हैंडसम, बेहद हैंडसम। इतना वजीहा मर्द इसने पहली बार देखा था। वो ना चाहते हुए भी मरहूब हो गई। वो खामोशी से इसे पकौड़ चांचती निगाहों से देखता रहा, यहाँ तक कि वो आकर सीधी सामने वाले सोफे पर बैठी और फाइल मेज़ पर रख दी। ये फाइल अप्रूव करवानी थी एएसपी साहब। वो टांग पर टांग रख के इसके मुकाबिल बैठी खासे एतमाद से बोली तो वह ज़रा सा मुस्कुराया और पास खड़े सूटेड बूटेड शख्स की तरफ देखा। इनको आगा फवाद करीम ने ही भेजा है राव साहब। मुस्कुरा कर कहते इसने जूस का ग्लास लबों से लगाया। महमल ने चौंक कर राव को देखा, वो भी मुस्कुरा दिया था। कुछ था इन दोनों की मायनी के इस मुस्कुराहट में कि दूर इसके जहन में खतरे का अलार्म बजा। तो आप फाइल अप्रूव करवाने आई हैं? वो इस्तज़ाहिया मुस्कुराती निगाहों से कह रहा था। महमल को उलझन होने लगी थी। जी ये आगा इंडस्ट्रीज़ की फ़ाइल है। और आपकी अपनी फ़ाइल वो कहाँ है? इसने ग्लास साइड पर रखकर झुक के फ़ाइल उठाई। मेरी कौन सी फ़ाइल? कुछ था जो इसे कहीं गलत लग रहा था, कहीं कुछ बहुत गलत लग रहा था। आप जाएं राव साहब। इसने फ़ाइल के सफ़े पलटाकर एक सरसरी सी नज़र डाली और फिर फ़ाइल इसकी तरफ बढ़ाई। महमल लेने के लिए उठी, मगर बहुत तेज़ी से राव साहब ने आगे बढ़कर फ़ाइल थामी और जाकर आगा फवाद के ड्राइवर से कहें कि फ़ाइल अप्रूव्ड है, सुबह इन्हें रसीद मिल जाएगी। बेहतर सर। राव साहब फ़ाइल लेकर पलटे तो वो उठ खड़ी हुई। मुझे दे दे, मैं ले जाती हूँ। वो दोनों एकदम चौंके थे और फिर रुक कर एक दूसरे को देखा। हुमायूं ने इशारा किया तो राव साहब मुस्कुराकर बाहर निकल गए। आप बैठिए मदाम, ड्राइवर दे आएगा। एकदम ही इसके कानों में खतरे की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। इसे लगा वो गलत वक्त पर गलत जगह और गलत लोगों में आ गई है। इसे वहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं मैं चलती हूँ। वो पलटने ही लगी थी कि वो तेज़ी से उठा और ज़ोर से इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। इसके लबों से चीख निकली, ज़्यादा ओवर स्मार्ट पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कहा जा रहा है वैसे ही करो। इसके बाजू को वो अपनी आहनी गिरफ्त में लिए कुर्राया था। लम्हे भर को तो ज़मीन आसमान महमल की निगाहों के सामने घूम गया था। छोड़े मुझे। वो संभल ही नहीं पाई थी कि हुमायूं दाऊद ने इसके दोनों हाथों को पकड़कर झटके से इसे अपने सामने किया। ज़्यादा चालाकी दिखाई तो अपने पैरों पर खड़ नहीं जाओगी। मुझे छोड़े, मुझे घर जाना है। महमल ने इसे धकेलना चाहा, मगर इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। घर जाना है? घर ही जाना था तो ये इतना बनाव सिंगार किस लिए किया था? हाँ। इसने हौले से इसकी ठोरी उंगली से ऊपर की, दूसरे हाथ से कोहनी इतनी मजबूती से पकड़ी थी कि वो हिल नहीं पाई और घबरा कर चेहरा पीछे किया। मैं फंक्शन पर जा रही थी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप फवाद भाई से मेरी बात करवाएं। इन्हें बताएं कि मैं भाई। वो चौंका। आगा फवाद तेरा भाई है? जी जी वो मेरे भाई हैं। आप बेशक इनसे पूछ लें। मुझे यहाँ नहीं आना था, फवाद भाई को खुद आना था, मगर इनकी मीटिंग थी। वो एकदम रोने लगी थी। आप प्लीज़ मुझे घर जाने दें। मैं गलत लड़की नहीं हूँ, मैं इनकी बहन हूँ। झूठ बोल रही है। राव पीछे आ खड़ा हुआ था। इसको इधर आना था। 4 हफ्ते पहले तो डील हुई थी सर, और इसी के नाम से हुई थी। कम उम्र, खूबसूरत और अनछुई। आगा ने कहा था कि हमारी डिमांड पर पूरी उतरती है। राव का लहजा स्पॉट था। महमल इब्राहिम नाम है ना तुम्हारा? तुम आगा की बहन कैसे हो सकती हो? वो 3 करोड़ के नफ़ा के लिए अपनी बहन को एक रात के लिए नहीं बेच सकता।
اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے بہت زور کا چکر آیا تھا، وہ گرنے ہی لگی تھی کہ ہمایوں نے اس کی دوسری کونی سے پکڑ کر اسے کھڑا رکھا۔ اب سیدھی طرح بتاؤ، تم ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو یا آغا نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے؟ تم محمل ابراہیم ہو اور وہ فواد کریم، وہ تمہارا سگا بھائی ہے، اتنے عرصے لڑکیاں فراہم کر رہا ہے تو کبھی اپنی بہن کا سودا نہیں کیا؟ نہیں، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فواد بھائی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ میری ان سے بات کروائیں، آپ خود سن لینا، وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں، ہمیں ایک فنکشن پہ جانا تھا۔ عام انسان کی طرح محمل کو بھی ہلکی پھلکی چھوٹ کی عادت تو تھی ہی، اور اسی پرانی عادت کا کمال تھا کہ اس کے لبوں پہ خود بخود ڈنر کی جگہ فنکشن نکلا تھا۔ کہیں لاشعوری طور پر اسے احساس تھا کہ اگر فواد اور اپنے خاص ڈنر کا بتاتی تو وہ اسے بری لڑکی سمجھتا۔ راؤ صاحب، آقا فواد کو فون ملائیں۔ رائٹ سر۔ راؤ موبائل پر نمبر ملانے لگا اور اسپیکر آن رکھی۔ اس نے کہہ کر ایک گہری نظر محمل پر ڈالی جو بے قرار اور ہراساں سے کھڑے راؤ کے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ رہی تھی۔ جی راؤ صاحب، ایک دم کمرے میں فواد کی آواز گونجی۔ مال پہنچ گیا؟ پہنچ تو کیا ہے مگر پرزے آواز بہت دیتے ہیں، آپ بات کر لیں۔ اس نے فون آگے بڑھا کر محمل کے کان سے لگایا۔ ہیلو فواد بھائی، وہ رو پڑی تھی۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، آپ پلیز ان کو بکواس مت کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ چاہیے یا نہیں؟ چاہیے نا تو جیسے ASP صاحب کہتے ہیں کرتے جاؤ۔ فواد بھائی، وہ حلق کے پل چلائی، یہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے، وہ جو کرتے ہیں کرنے دو، ایک رات کی ہی تو بات ہے، اب زیادہ بک بک مت کرنا، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ساتوں آسمان اس کے سر پر ٹوٹے تھے، وہ ساخت سی کھڑی رہ گئی۔ صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ اس کی آواز اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ بس ایک ڈائمنڈ رنگ کا لارا دیا ہے اس نے تمہیں، اور تم تو کہتی ہو وہ تمہارا بھائی ہے۔ فون اس کے کان سے ہٹا کر بند کرتے ہوئے ہمایوں نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح پتھر کا بت بنی کھڑی تھی، اس کا ذہن، دل، کان، آنکھیں سب بند ہو چکے تھے۔ راؤ صاحب، پتہ کروائیں کہ واقعی فواد کریم کی بہن ہے یا نہیں، اور اس کی بات میں کتنی سچائی ہے، یہ تو ہم بعد میں خود معلوم کر لیں گے۔ شمس بچل، اس نے زور سے آواز لگائی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے، ساکت کھڑے وجود سے سہمی سہمی جان آہستہ آہستہ نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے بادل چھانے لگے تھے۔ 2 گن مین دوڑتے ہوئے اندر آئے تھے۔ شمس، اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دو اور دھیان کرنا بھاگ نہ جائے۔ بچل، اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا محمل چکرا کر گری، اور اگر اس نے اسے دونوں پاسوں سے تھام نہ رکھا ہوتا تو وہ نیچے گر پڑتی۔ محمل، محمل، وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور ذہن گہرے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں پہ کچھ نمی ڈالی گئی تھی، گیلے پن کا احساس تھا یا کچھ اور۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ اٹھ جاؤ، بہت سو لیا۔ وہ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سامنے کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ چند لمحے تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، اور جب آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ وہ بڑا سا پرتعیش بیڈ روم تھا، قیمتی صوفے، قالین اور بھاری خوبصورت پردے۔ وہ ایک بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کے اوپر بیڈ کور ڈالا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا وہ اسے کسی کمرے میں بند کرنے کی بات کر رہا تھا جب وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب وہ کدھر تھی اور اسے کتنی دیر بیت چکی تھی؟ گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر قدرے سیدھی ہو کے بیٹھی۔ وہ ابھی تک اسی سیاہ چھلملاتی ساڑی میں ملبوس تھی، اور بیوٹیشین کی لگائی ہوئی ساری پینٹس ابھی تک ویسے ہی گس کر لگی ہوئی تھی۔ میں کدھر ہوں؟ کیا وقت ہوا ہے؟ صبح ہو گئی؟ وہ پریشان سی ادھر ادھر دیکھنے لگی تو سامنے والی کلاک پر نظر ٹکی۔ 3:30 بج رہے تھے، ابھی صبح نہیں ہوئی، اور آپ وہی ہیں جہاں آنے کے لیے فواد نے آپ کو ڈائمنڈ رنگ کا لالچ دیا تھا۔ مجھے فواد بھائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا میں فائل سائن کروا کے واپس آ جاؤں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ آغا فواد تو کہتا ہے تم اس کے گھر میں پلنے والی ایک یتیم لڑکی ہو، نہ کہ اس کی بہن۔ یتیم ہوں تبھی تو تم جیسے عیاشیوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا اس نے مجھے، میرا سگا تایا ساتھ بھائی تھا، تم سب قدوں کا بس یتیموں پر ہی تو چلتا ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ مجھے یہ آنسو اور جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی۔ وہ اب اطمینان سے سگریٹ سلکا رہا تھا۔ مجھے بس سچ سننا ہے، وہ بھی ٹھیک ٹھیک، نہیں تو تمہیں تھانے لے جا کر تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ مجھے یہ بتاؤ اس سے پہلے وہ تمہیں کتنا شیئر دیتا رہا ہے؟ کدھر کدھر بیچا ہے اس نے تمہیں؟ اور تمہارے اس گینگ میں کون کون ہے؟ سگریٹ کا ایک کش لے کر اس نے دھواں چھوڑا تو لمحے پر کو دھوئیں کے مرگولے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ مجھ سے قسم لے لو، میں سچ قسم لے لوں، واقعی؟ ہاں لے لیں۔ 100 بندوں کے سامنے عدالت میں اٹھاؤ گی قسم؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا، سگریٹ لبوں میں دبائے کش لے رہا تھا۔ میں تیار ہوں، مجھے عدالت میں لے جائیں، میں یہ سب دہرانے کو تیار ہوں۔ وہ تب ہوگا جب میں تیرے کہے پہ یقین کروں گا، یقین جو ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں چھٹکی، راکھ کے چند ٹکڑے ٹوٹ کر گرے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے فواد بھائی نے کچھ نہیں بتایا تھا، تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ نہیں پلیز،
वो लहाफ उतार कर बिस्तर से उतरी और घुटनों के बल इसके कदमों में आ बैठी। एएसपी साहब, इसने इसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं ला इल्म थी कि आपका क्या मकसद है, कि फवाद भाई का क्या मकसद है। मैं मेरिट में डिनर पे जाने के लिए तैयार हुई थी। मेरा कोई कसूर नहीं है। इसकी कांच सुनहरी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे थे। अल्लाह की कसम ये सच है। अल्लाह की कसम खाने के लिए आगा फवाद ने क्या पेश किया था? डायमंड सेट। वही शकी पुलिस ऑफिसर और मखसूस तंजिया अंदाज। जितना वो शख्स वजीहा था, इसकी जुबान इससे पढ़कर कड़वी थी। महमल का दिल चाहा इसका मुंह नोच ले और अगले ही पल वो इस पर छपटी और इसकी गर्दन दबोचनी चाही, मगर हुमायूं ने इसकी दोनों कलाइयाँ अपनी गिरफ्त में ले ली। इसी कश्मकश में महमल के दो नाखून इसके गाल पर से रगड़े गए। सिर्फ आंखें नहीं, तुम्हारी तो हरकतें भी बिल्लियों जैसी हैं। वो खड़ा हुआ और इसको कलाइयों से पकड़े पकड़े भी खड़ा किया, फिर झटका देकर छोड़ा। वो 2 कदम पीछे जा हुई। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। वो मुड़ कर जाने लगा तो वह तड़प कर इसके सामने आ खड़ी हुई और फिर से हाथ जोड़ दिए। सुबह होगी तो बदनाम हो जाऊंगी। मैंने कहा ना बीबी, मुझे ये जज्बाती तकरीर मुतासिर नहीं करती। इसने अपने गाल पर हल्का सा हाथ फेरा और फिर इस्तज़ाहिया मुस्कुराया, फिर कहा, तुम बहादुर लड़की हो, मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, मगर अभी नहीं। अभी तुम इधर ही रहोगी, कम अज़ कम सुबह तक। मैं बदनाम हो जाऊंगी एएसपी साहब। रात गुजर गई तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। वो सिगरेट ऐश ट्रे में डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो हाथ जोड़े खड़ी रह गई और वह दरवाज़ा बाहर से बंद करके जा चुका था। दरवाजे की जानिब वो लपकी और डोर नॉब जोर से खींचा। वो बाहर से बंद था। दरवाज़ा खोलो, खोलो। वो दोनों हाथों से जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी, मगर जवाब निदारद। वो बेबस सी ज़मीन पर बैठती चली गई। फवाद, फवाद इसके साथ ऐसा कर सकता है? इसे यकीन न आता था। इसने क्या बिगाड़ा था फवाद का, जो इसने चंद रुपयों के इव्ज़ इसे बेच दिया? वो घुटनों पर सर रखे आंसू बहाती वो शाम याद कर रही थी जब वो इसे देखते देखते चौंका था और चाय का कप लेते हुए इसकी उंगलियां मिस हुई थी। कम उम्र, खूबसूरत और अनछुई। आगा ने कहा था कि हमारी डिमांड पर पूरी उतरती थी, तो वह इसलिए चौंका था कि किसी अयाश शख्स की बताई गई डिमांड पर इसके घर में पलने वाली यतीम लड़की पूरी उतरती थी। तुम कितनी खूबसूरत हो महमल, मुझे पता ही नहीं था। इसके लहजे का अफसोस और फिर इसकी सारी अनायतें। वो जानता था कि इसकी कमज़ोरी क्या है। इसने इसको इसकी मनपसंद चीज़ें दिखाई, यहाँ तक जब वो इसके मुकम्मल काबू में आ गई तो फवाद ने इसे इधर भेज दिया। और वो भी कितनी बेवकूफ़ और सादा थी, इसे पता ही नहीं चला। वो ऑफिस में इसको इधर उधर चीज़ें साइन करवाने भेज देता है और कोई काम तो इसने महमल से लिया ही नहीं था। वो तब भी ना समझ सकी। और अब ये शख्स, हुमायूं दाऊद नहीं जानती थी कि ये आदमी कौन था, इससे ये सब बातें कौन पूछ रहा था और इसका क्या मकसद था। इसे सिर्फ इल्म था तो इतना कि अगर रात बीत गई तो सुबह इसे कोई कबूल नहीं करेगा, और कबूल तो शायद अब भी कोई ना करे। कोई फवाद के खिलाफ इसकी बात का यकीन नहीं करेगा, कोई इसे बेगुनाह नहीं मानेगा। और फवाद, वो तो शायद सिरे से ही मुकर जाए कि वो कभी महमल को ऑफिस लेकर ही नहीं गया। खुदाया, वो क्या करे। इसने फीका चेहरा उठाया। कमरा कदरे धुंधला सा दिखाई देता था। इसने पलकें झपकाईं तो आंसुओं की धुंध लुढ़कती चली गई। कमरा निहायत खूबसूरती से आरास्ता था। कीमती कालीन, खूबसूरत फर्नीचर और भारी मखमली पर्दे। वो चौंकी, क्या इनके पीछे कोई खिड़की थी? वो पर्दों की तरफ दौड़ती और झटके से इन्हें एक रुख खींचा। पर्दा खुलता चला गया। बाहर टेरेस था और इसकी रोशनियां जली हुई थी, जिनमें वो बगैर दिक्कत के 2 गनमैन चौकस खड़े देख सकती थी। इसने घबरा कर पर्दा बराबर किया। अल्लाह ताला प्लीज़। वो रोकर दुआ करने लगी और जब दुआ करते करते थक गई तो ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ी हुई और अपना अक्स देखा। रोने से सारा काजल बह गया था। आंखें मतरूम और कदरे भयानक लग रही थी। जूड़ा ठीला होकर गर्दन तक आ गया था और घुंघराली लट्टों के पल सीधे होने लगे थे। महमल एक मजबूत असाब की लड़की थी। इसके बावजूद फवाद के इस भयानक रूप का सदमा इतना शदीद था कि शुरू में तो इसने हिम्मत हार दी और असाब जवाब दे गए, लेकिन अब वो किसी हद तक सोचने समझने के काबिल हुई थी। फवाद से सारे बदले वो बाद में चुकाएगी। अभी इसे इस अखड़ और सर्द महर एएसपी की कैद से निकलना था। इसने इधर उधर देखा, कुछ खास नजर ना आया तो फिर वार्डरोब खोला। अंदर मर्दाना कपड़े टंगे हुए थे। इसने कुछ हैंगर्स उलट पलट किए और कुछ सोचकर एक कुर्ता शलवार निकाला। ब्राउन कुर्ता और सफ़ेद शलवार को पहनकर बाल सीधे करके बैंड में बांधे और बाथरूम में जाकर मुंह अच्छी तरह धोया। बाहर निकलने के लिए किसी रोज़न को तलाशते इसकी निगाहों को बाथरूम की कोई खिड़की दरवाज़ा नजर ना आया तो मायूसी से पलटने ही लगी थी कि एकदम चौंकी। एक दीवार में शेल्फ था, इसमें शैम्पू और शेव का सामान रखा था। शेल्फ के अंदर का रंग बाकी दीवार से ज़्यादा चिकना सफ़ेद था। भला क्यों? वो करीब आई, सारा सामान नीचे उतारा, फिर बगौर अंदर देखते हाथ फेरा तो एहसास हुआ इस खाने के पीछे दीवार नहीं बल्कि कार्डबोर्ड के सफ़ेद फट्टे थे जो मेखों से जुड़े थे। मेखें कच्ची और ताज़ा लग रही थी। आगे का काम बहुत आसान था। इसने सारे नल खोल दिए ताकि आवाज़ बाहर ना जाए
اور تھوڑی سی محنت کے بعد پھٹے کھینچ کر اتار لیے وہ جلدی میں لگائے لگ رہے تھے، سو اسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا تھا۔ ان کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی تھی، وہ اس میں سے آسانی گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن ہو کر محمل نے کھڑکی کھولی اور جب باہر جھانکا تو ایک لمحے کو تو سر چکرایا۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پر 4 دیواری کھڑی تھی اور 4 دیواری کے درمیان صرف خلا تھا اور نیچے بہت نیچے پکا فرش تھا۔ وہ اس گھر کی غالباً 3ری منزل پر موجود تھی، شاید اسی لیے انہوں نے کچے پکے پھٹے لگا دیے تھے۔ اندازہ ہوگا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا کہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مایوسی سے نل بند کرنے ہی لگی تھی کہ سناٹے میں ہلکی سی آواز سنائی دی تھی۔ آپ صحن میں کیا کر رہی ہیں؟ باجی، وہ میڈم مصباح نے کہا تھا کہ ارلی مارننگ منہ پہ گلاس رکھ کے پریکٹس کروں تو آواز اچھی نکلتی ہے، وہی کر رہی ہوں۔ لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بہت قریب نہیں تو بہت دور بھی نہیں تھی۔ وہ چونکی اور پھر باتھ روم کی لائٹ بند کی۔ باہر کا منظر قدرے واضح ہوا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ کا تھا، مگر وہ دیوار کی منڈیر تھی اور وہ آوازیں کہیں نیچے سے نہیں برابر سے آ رہی تھی، بالکل برابر، یعنی اس باتھ روم کے برابر بالکل سامنے صحن تھا۔ اگر وہ یہ دیوار پھاند جائے تو؟ اس اچھوتے خیال نے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانکا۔ اگر گر گئی تو نہیں بچے گی، مگر موت اس ذلت سے تو بہتر ہوگی جو صبح یا اس سے بھی بدیر گھر پہنچنے پر اسے اٹھانی پڑے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پر رکھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے کی وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی، سو وہ کھول نہ پا رہے تھے۔ یقیناً کسی نے پھٹے اکھاڑنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ لمحے پر کو بھی نہ گھبرائی اور ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا۔ وہ قریب ہی تھی، برابر والے صحن میں وہ کھنکاری تھی۔ اگلے اور لمحے اس کی مدھر مگر ہلکی آواز اندھیری فضا میں گونجنے لگی، اللہم جعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھے اور نیچے دیکھے بغیر دونوں پاؤں بھی رکھ دیے۔ وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، اور میری بصارت میری سماعت میں نور ہو۔ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار سی وہ دیوار پر بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ صحن کی زمین بہت قریب تھی، دیوار چھوٹی سی تھی۔ وَإِن یمنی نورا وَإِن یساری نورا، اور میرے دائیں اور بائیں جانب نور ہو۔ اس نے آہستہ سے دونوں پاؤں زمین پر رکھے۔ وہ بالآخر برابر والی چھت پر اتر آئی تھی۔ لمحے بھر کو وہ پلٹ کر بے یقین سے دیوار کو دیکھنے لگی، جس کے اس بار ASP ہمایوں کا گھر تھا، بلکہ قید خانہ جس سے وہ نکل آئی تھی۔ اسی پل دیوار کے پار سے روشنی سی چمکی۔ وہ ٹھٹکی، یقیناً اس نے باتھ روم کی لائٹ آن کی تھی۔ اپنی بے وقوفی پہ اسے غصہ آیا تھا۔ اسے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے نل کھول کے آنا چاہیے تھا، مگر عادی فراری تو نہ تھی، یا پھر اس لڑکی کی آواز کے فصوں میں ایسی کھوئی تھی کہ ہوش نہ رہا تھا۔ وفوقی نورا و تحتی نورا، اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آگے گرل لگی ہوئی تھی۔ گرل کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی زمین پر بیٹھی گرل سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے منہ پہ گلاس رکھے گنگنا رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ گھٹنوں کے بل رینگتی گرل تک آئی۔ وہ لڑکی دنیا و مافیا سے بے خبر اپنی مناجات میں گم تھی۔ وجعلی نورا، اور میرے لیے نور بنا دے۔ محمل چاپ پیدا کیے بغیر کھلے دروازے سے اندر رینگ گئی۔ لڑکی اسی طرح مگن سی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فریج پڑی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جالی دار الماری تھی۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اسے بس اتنا نظر آیا۔ وہ بہت آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی فریج کے پاس آئی۔ وَلَحْمِ نورا وَدْمِ نورا، اور میرے گوشت اور میرے خون میں نور ہو۔ فریج اور الماری کے درمیان چھپنے کی جگہ تھی۔ وہ چھٹ ان کے درمیان آ بیٹھی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ لڑکی واپس آتی تو سیدھی اس پر نظر پڑتی۔ نہیں، اسے یہاں چھپنے کی بجائے نیچے جانا چاہیے۔ وہ شعری نورا و بشرا نورا، اور میرے بال اور کھال میں نور ہو۔ اندر جانے والا دروازہ بند تھا، اگر اسے کھولتی تو آواز باہر جاتی۔ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی، تب ہی جالی دار الماری کے دروازے کے ہینڈل سے کچھ لٹکا ہوا نظر آیا۔ اس نے جھپٹ کر وہ اتارا۔ سیاہ جارجٹ کا لپاتا اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا۔ وجعل فی نفسی نورا، اور میرے نفس میں نور ہو۔ اس نے لپاتا کھولا، وہ سیاہ عبایا تھا اور ساتھ ایک گرے اسکارف۔ محمل نے پھر کچھ نہیں سوچا اور عبایا پہننے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا وہ مردانہ کرتا شلوار میں کھڑی ہے اور ننگے پاؤں ہے۔ وہ عبایا بھی اسے غنیمت لگا تھا۔ وَسَامْلِ نورا، اور میری ہڈیوں میں نور ہو۔ اسکارف کو اس نے بمشکل چہرے کے گرد لپیٹا۔ عادت نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ اب اسے کسی طرح نیچے جا کر سڑک تک پہنچنا تھا۔ آگے اپنے گھر کا رستہ تو آنکھیں بند کر کے بھی آتا تھا۔ اللہم اتانی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا فرما۔ وہ اسی ترنم میں پڑھ رہی تھی۔ محمل تیزی سے عبایا کے بٹن بند کر کے اسکارف پر ہاتھ پھیر کے درست کر رہی تھی کہ ایک دم اسے بہت خاموشی لگی۔
बाहर सहन बहुत चुप सा हो गया था। शायद इस लड़की की दुआ ख़त्म हो गई थी। इसने कतरे घबराहट कतरे जल्दबाजी में दरवाज़ा खोलना चाहा। इसी पल इस लड़की ने पीछे ग्रिल की चौखट पर कदम रखा। अस्सलामुअलैकुम। कौन? चौकन्नी सी आवाज़ इसके अकब में उभरी तो इसके बढ़ते कदम रुक गए। दरवाजे पर हाथ रखे रखे वो गहरी सांस लेकर पलटी। वो सामने शलवार कमीज में बलबूस, सर पे दुपट्टा लपेटे, हाथ में किताब पकड़े उलझी निगाहों से इसे देख रही थी। महमल का दिल जोर से धड़का था। वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। जाने अब क्या होगा। वो मैं आपकी आवाज़ सुनकर यहाँ आई थी। बहुत अच्छी तिलावत करती हैं आप। तिलावत नहीं, दुआए नूर थी। मेरी आवाज़ नीचे तक आ रही थी क्या? लड़की का अंदाज सादा मगर मोहतात था। महमल का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। इसे किसी तरह इस लड़की को बातों में उलझाकर वहाँ से निकलना था। एक दफ़ा वो सड़क तक पहुँच जाए, घर के तमाम रास्ते इसे आते थे। खूबसूरत आवाज़ हर जगह पहुँच जाती है। मैं तिलावत समझ कर आई थी। मालूम ना था आप दुआ मांग रही हैं। दुआ मांग नहीं, याद कर रही थी। आपने बताया नहीं आपका नाम। शाइस्तगी से कहती वो लड़की 2 कदम आगे आई तो ग्रिल से छन कर आती चांदनी में इसका चेहरा वाज़िह हुआ। चिकनी सफ़ेद रंगत, बेहद गुलाबी होंठ और बादामी आंखें जिनकी रंगत सुनहरे पे खराज की सी थी। गोल्डन क्रिस्टल, ये पहला लफ्ज़ महमल के जहन में आया था और इसे देखते ही वो लम्हे भर को चौंकी थी। बहुत शिद्दत से महमल को एहसास हुआ था कि इसने इस लड़की को कहीं देखा हुआ था, कहीं बहुत करीब। अभी कुछ वक्त पहले इसके नक्श नहीं, ये पूरी आंखें थीं जो शनासा थी। मैं महमल हूँ। जाने कैसे लबों से फिसल पड़ा। मुझे दरअसल रास्ते नहीं पता थे तो भटक जाती हूँ। ओह, आप हॉस्टल में नहीं आई हैं, न्यू कमर है। और इसे उम्मीद का एक सिरा नज़र आ गया। वो शायद कोई गर्ल्स हॉस्टल था। जी मैं शाम में ही आई हूँ। न्यू कमर ऊपर आ तो गई हो मगर नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। नीचे आपके रूम्स तो 3rd फ्लोर पर ही है ना? फिर नीचे? ओह, आप तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी होंगी यकीनन। वो खुद से ही कहकर मुतमईन हो गई। मैं भी तहज्जुद पढ़ने के लिए परे हॉल में जा रही हूँ। आप मेरे साथ आ जाएं। इस लड़की ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, फिर गर्दन मोड़कर इसे देखा। मैं फरिश्ते हूँ, आ जाएं। वो दरवाज़ा धकेल कर आगे बढ़ गई तो महमल भी मुतज़ब्ज़ब पीछे हो ली। सामने संगे मरमर की तवील राहदारी थी। दाएं तरफ ऊंची खिड़कियाँ थीं जिनसे छन कर आती चांदनी से राहदारी का सफ़ेद मरमरी फर्श चमक रहा था। फरिश्ते राहदारी में तेज़ तेज़ आगे चलती जा रही थी। वो नंगे पाँव इसके ताक़ुब में चलने लगी। मर्दाना खुले पांचे इसके पाँव में आ रहे थे मगर ऊपर अबाई ने ढांप रखा था। राहदारी के इख्तिताम पर सीढ़ियाँ थीं, सफ़ेद चमकते संगे मरमर की सीढ़ियाँ जो गोलाई में नीचे जा रही थी। इसने नंगे पाँव सीने पे रखे। रात के इस पहर सीनों का संगे मरमर बेहद सर्द था, यक ठंडा। वो महसूस किए बगैर तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतरने लगी। 3 मंजिलों के सीने ख़त्म हुए तो सामने एक कुशादा बरामदा था। बरामदे के आगे बड़े बड़े सफ़ेद सतून थे और सामने लॉन नज़र आ रहा था। हल्की चांदनी में बरामदा नीम तरीक सा लग रहा था। एक कोने में चौड़ी, बेहद चौड़ी सीढ़ियाँ नीचे जाती दिखाई दे रही थी। फरिश्ते इन सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो लम्हे भर को तो इसे खौफ आया। वो बेहद चौड़ी सीढ़ियाँ काफ़ी नीचे जा रही थी। मध्यम चांदनी में चंद जीने ही दिखाई देते थे। आगे सब तारीकी में गुम था, न जाने क्या था नीचे।